Okay, so we have two type. Okay, based on the which element we are doping with. Okay, if you are Yes, sir. doping with group third elements, means that will become p type semiconductor, and if you're doping with group 5 element, this will make n type semiconductor. Okay, Yes, sir. so intrinsic semiconductor are those semiconductor which is going to be added, which is going made with the adding a impurity, the pure one. Okay, so n type and p type semiconductor we can make it. Okay, I'll see when tetravalent means that is group 4 element, that like silicon and germanium doped with pentavalent impurities such as phosphorus, arsenic और Sb, है ना? ये मटेरियल के साथ अगर आप डोपिंग करते हो तो वो क्या बन जाएगा? एन टाइप. क्यों बनेगा अभी देखते. एन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें ज्यादा है. ओके, while making when we make this at the starting, there is a there is a few number of electrons free, है ना, at the beginning. Okay, see how सिलिकॉन एटम है. ओके, बीच में एक हम फास्फोरस एटम डाल, ये सिलिकॉन एटम आपस में नियरिंग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. ओके, बीच में एक फास्फोरस एटम हम इंप्यूरिटी को इंजेक्ट करते, कहीं पे जाके वो बीच में बनाएगा ऐसे. ठीक है, अभी फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड. ओके, फास्फोरस के पास कितना? 5. ओके, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 तो बना लेगा अपने नियरिंग के साथ. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 अपने नियरिंग एटम के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना ले. दे विल मेक ए कोवलेंट बॉन्ड विद द नियरिंग एटम ऑफ द सिलिकॉन, बट ये फ्री रह जाएगा, है ना, ये किसी के साथ बॉन्ड में आ ही नहीं पाएगा. तो फॉर दिस सिस्टम this electron is free. This electron is free. You see, if we are adding one atom, okay, only one atom, we'll get one free electron. मतलब क्या हुआ? Dopant equals to free of electron. जितना हम डोपेंट का एटम ऐड करेंगे उतना ही हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा. फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा. हाँ, ये याद रखो क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स, इस पे कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते. ओके, विल मेक सम न्यूमेरिकल आल्सो. ओके, based on that. Now see, they will make a covalent bond like that. Okay, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाए. Okay, now if he gives some energy, then again there is a break of covalent bond. Okay, again there is a break of covalent bond. Now normally at the earlier we are having only some few free of electrons, but now at the beginning we are having one free electron with the others also. Okay, when you give some extra energy from externally. Okay, so the number of free electron present in the system or the concentration of the free electron present in the system is going to be increased. Okay, like that. Okay, we have valence band and conduction band. Okay, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे. अभी एक चीज दिखाते हैं आपको. हाँ हाँ, see, this electron present into the system is having different energy level.
ओके, ये फ्री है, तो जब ये फ्री है तो इसका एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा? नियर टू द कंडक्शन बैंड। ओके, ये तो वैलेंस बैंड है जहां पे आपके कोवलेंट बॉन्ड्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है। ओके, वैलेंस बैंड। बट द फास्फोरस एटम having the electron which is not taking part into the covalent bond is free, and it's having some different energy level. Okay, and that is near to the conduction band. Okay, so this is called as donor energy level. Although this is free, okay, it's very near to the conduction band. As we know, if your electron present in the conduction band, then we are calling it as a free electron. Okay, so is having different energy level, those who are present in the system. Okay, and we are calling it as a donor label. And also we are calling this phosphorus as donor atom, because this atom is donating one electron into the system. This atom is donating one free electron into the system. That is why this atom is going to be called as donor atom. Got the point? Yes, sir. So now this free electron will take very little amount of energy to jump into the conduction band. Okay, although it's near to the conduction band, but it requires some energy, okay, to go into the conduction band for the conduction. Okay, and this is very less, 0.005 electron volt. Okay, so now if we look at the energy band diagram portion, आप इधर एनर्जी बैंड डायग्राम वाले सेक्शन में देखो। ओके, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना, लाइक दैट। अगर आप एनर्जी देते हो तो ऐसे बिहेव करें। ओके, देख अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री। ओके, फॉर द कंडक्शन, अर्लियर इट वाज 1 or 2 डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकिंग, like that. One thing, please note that. Okay, earlier, see, this phosphorus atom is going to be ionized. अगर कोई एटम है, आप पढ़े होगे 12th में, ठीक है, अगर कोई एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका उससे अगर कोई जो वैलेंस शेल है उसका अगर कोई इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो जाता है तो वो एटम आयोनाइज हो जाता है। ओके, पढ़े थे? पढ़े थे ना? कोई अगर एटम है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री नहीं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इससे कोई एक इससे दूर हो जाता है तो वो एटम आयोनाइज हो जाता है, मतलब या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, तो आयोनाइज्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग द वॉइस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो आयनाइज्ड हो जाएगा। क्लियर? अरे यार, ओके, क्या बोला था? कोई एक एटम है सपोज, उसके पास
वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स। ओके, किसी दूसरे एटम के साथ वो बॉन्डिंग में जब आता है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन छूट, सर हाँ अटेंडेंस सर हो गया क्या सर? नहीं अभी तो नहीं हुआ है। कौन बोल रहे हो? मनोहर सर। अभी तो नहीं हुआ है, हो जाएगा। वन ठीक है सर। सेकेंड, गिव मी। ओके, बीच में तुम टोक दिए यार, कहाँ पे मैं क्या बोल रहा था? सर आयन बोल रहे थे सर, आयन हाँ क्रिएट होता है। हाँ, if there is a atom, okay, please listen carefully, if there is a atom and obviously जब एटम है तो उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? और ये यस तो सर। अकेला नहीं रहेगा कोई सिस्टम में, जब भी एटम्स रहेगा तो उसके नियर में तो कोई बहुत सारे एटम्स रहेंगे, मे बी द सेम मटेरियल और मे बी द डिफरेंट मटेरियल। ओके, तो जब ये इसके सेल के जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो दूसरे के साथ जब बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन अगर इसका एक एटम छूट गया, मतलब वो फ्री हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट है सपोज इसमें 5 था लेकिन वो 4 तो बना लिया, एक बच गया, तो ऐसे एटम को क्या बोलेंगे? आयोनाइज्ड एटम। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली आयोनाइज्ड एटम होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे चला गया है ना? तो वो क्या हो जाएगा? यस सर। आयोनाइज्ड हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता यस है या सर। निगेटिव आयोनाइज्ड हो सकता है। तो इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिवली आयोनाइज हो जाएगा फास्फोरस एटम। ओके, हम उसको प्लस साइन से ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इसके एक एटम चला गया, अभी एक एटम इसको चाहिए, इसलिए प्लस साइन से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, गॉट द पॉइंट? जहां पे भी आप डायग्राम में प्लस साइन देखोगे इसका मतलब वो फास्फोरस एटम है। ओके,